Hello everyone, Mayank here. So in this video we are going to discuss about the HTML attributes. So this is the third video of the HTML series. So without wasting any time, let's start. HTML attributes. So हर एक HTML elements के attributes होते हैं. So what are attributes? So attributes provides the additional information about the element. जैसे हमारा नाम, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस provides the additional information about us. The same way attributes provides the additional information about that particular element. Attributes are always specified in the start tag. So हमें जैसे पता है हर एक टैग की ओपनिंग टैग होती है और क्लोजिंग टैग होती है. तो attributes are always specified in the start of the tag. So attributes हम जब लिखेंगे तो हमेशा हमारे स्टार्टिंग टैग में होगा, ना कि एंडिंग टैग में. Attributes usually comes in the name/value pairs like name is equal to value. So attributes कुछ ऐसा होगा कि हमारा कुछ attribute का नाम होगा और फिर वो attribute का value होगा. ये हम कोड करते समय देखेंगे कि name क्या होता है, value क्या होता है. So the first attribute is the href attribute. The a tag defines a hyperlink. The href attribute specifies the URL on the page the link goes to. जैसे कि अगर कोई पेज में इंस्टाग्राम लिखा है और हम उस पर क्लिक करें वो लिंक पर, तो किसी का इंस्टाग्राम आईडी खुल जाएगा या कुछ हो जाएगा. तो हम कर सकते हैं href एट्रीब्यूट से. तो अगर हम ahref लिखकर जो भी हमें यूआरएल देना, जैसे मैं youtube.com लिखा हूँ और यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा विजिट यूट्यूब, तो वहाँ पर लिख के आ जाएगा विजिट यूट्यूब और जैसे ही मैं विजिट यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो यूट्यूब खुल जाएगा. तो href एट्रीब्यूट कुछ ऐसा होता है, वो हम कोड करते समय देखेंगे और वो क्लियर हो जाएगा. नाउ द src attribute, also known as source attribute. So the image tag is used to embed an image in an HTML page. The source src attribute specifies the path to the image to be displayed. For example, image source, ये कोई इमेज का फॉर्म है जो कि जेपीजी में. सो src एट्रीब्यूट कुछ ऐसा होता है कि वो इमेज को पाथ बता देगा to be displayed on the HTML page. So while writing the so if we want image in our HTML page, we have to write image src attribute फिर जो भी उसका value, so value in this case will be your image name. The width and the height attribute. So the image tag should also contain the width and height attributes, which specifies the width and height of an image in pixels. So यहाँ पर हमने देखा कि ये src एट्रीब्यूट है, वैसे ही ये width और height एट्रीब्यूट है, जिससे कि आपकी इमेज का एक पर्टिकुलर width और height हो जाएगा. So जितने भी एट्रीब्यूट हमने देखे, ये एट्रीब्यूट का नाम होगा और ये उसका वैल्यू. In this case, the attribute name is width and its value is 500. And in this case, the name is height and the attribute value is 600. और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा width और height पिक्सल्स में ही होना चाहिए. The language attribute. You should always include the language attribute inside the HTML tag. तो इससे होगा क्या? So आपके वेब पेज को सर्च इंजिन्स एंड ब्राउज़र असिस्ट करेंगे कि हाँ भाई ये लैंग्वेज में खुलना चाहिए जब कोई यूज़र इस पेज को खोल रहा है. फॉर एग्जांपल हमने कोड करते समय देखा था कि डॉक टाइप HTML के बाद यहाँ पर आ रहा था HTML लैंग्वेज EN. तो दिस EN स्पेसिफाइज कि हमारा वेब पेज जो होगा वो इंग्लिश में होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज़ करके उसमें कुछ वैल्यू डालो. सो जो भी वैल्यू होगा वो लैंग्वेज में वो डिस्प्ले करेगा जब कोई यूज़र आपका पेज खोलेगा. एंड वी विल यूज़ इंग्लिश ओनली. द टाइटल एट्रीब्यूट. So the title attribute defines some extra information about an element. The value of the title attribute will be displayed as a tooltip when you will mouse over the element. So वो जैसे ही हम वो टेक्स्ट पे अपना माउस घुमाएंगे तो उसका जो कर्सर होगा वो चेंज होगा. So it is very interesting and we will look it. So it is very interesting and we will look at it while we go. तो अब हम कोड करके देखते हैं हर एक एट्रीब्यूट जो कि हमने अब तक सीखा. सो लेट्स कोड इट गाइस. सो यस गाइस, लेट्स लुक.
अबाउट एट्रीब्यूट्स HTML। सो यहाँ पर पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, एट्रीब्यूट्स एग्जाम्पल का, एंड वी विल लुक फर्स्ट ahref टैग। सो जैसे मैं a लिख के एंटर दबा दूँ तो यहाँ पर href आ जाएगा। सो यहाँ पर ahref के एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिंक कॉपी कर लिया है, एक URL कॉपी कर लिया है, जो कि मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंड दिस इज़ नथिंग बट माई इंस्टाग्राम पेज। सो यहाँ पर मैंने अपना URL पेस्ट करके, सो बिफोर क्लोजिंग टैग यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड लेट्स सेव इट गाइस। सो यहाँ पर अब हम लाइव जाते हैं। सो यस, हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक लिंक खुल जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। सो ये लिंक वही टैब में खुल रहा है, ये दूसरे टैब में कैसे खुलेगा ये जानने के लिए स्टिक टू द लेक्चर गाइज, एंड वी विल लर्न अबाउट इट इन द CSS लेक्चर। सो यहाँ पर मैंने एक HTML VS कोड का फाइल बनाया जो कि मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया, और हमारे सारे कोड यहीं पर सेव हो रहे हैं। सो उसी फाइल में मैंने एक इमेज सेव किया जो कि HTML सीरीज़ के नाम से, और ये मेरा थंबनेल का इमेज है। तो अब हम इसे इमेज SRC के एट्रीब्यूट में यूज़ करके देखते हैं। सो जैसे ही मैं img लिख कर एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर इमेज सोर्स एट्रीब्यूट और यहाँ पर वैल्यू के लिए कोटेशन मार्क आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं HTML सीरीज डॉट डालूंगा तो यहाँ पर PNG के फाइल से, जो कि ऑलरेडी सेव्ड है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा फाइल नेम आ गया। तो सो लेट्स सेव इट गाइज, गो टू आवर वेब पेज। सो यहाँ पर मेरा इमेज आ रहा है और जो हमने एट्रीब्यूट ahref में दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल लिखा था वो आ गया। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। सो जैसे मैं यहाँ पर W डालूंगा तो विड्थ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं विड्थ में लिख रहा हूँ 742 पिक्सल, 742, और यहाँ पर मैं हाइट में लिख रहा हूँ 452। सो लेट्स सेव इट गाइज एंड लेट्स गो टू आवर वेब पेज। सो हमारा इमेज छोटा हो गया। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्टर योर साइज इमेज बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ विड्थ एंड हाइट। और लैंग्वेज एट्रीब्यूट तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। सो यहाँ पर HTML लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है जिसका की वैल्यू है EN। सो यही है, इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ छेड़खानी मत करना। सो नाउ लेट्स लर्न द टाइटल एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ लॉरेम 78 वर्ड्स का, और यहाँ पर मैं अपने स्टार्टिंग टैग में, जैसा कि हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग में होता है, तो यहाँ पर मैं टाइटल लिख दूंगा, और यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट नेम आ गया एट्रीब्यूट का, और यहाँ पर वैल्यू के लिए कोटेशन मार्क आ गया। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, एंड लेट्स सेव इट गाइस। सो इससे होगा क्या, जब हम अपना कर्सर इस पर हवर करेंगे, सो आप देख रहे हो ये हमारा चेंज हो रहा है कर्सर। सो टाइटल एट्रीब्यूट से यही होता है, आपका कर्सर हो जाएगा और जैसे ही आप उस पर हवर करोगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, यहाँ पर लिख के आ रहा है दिस इज सैम्पल टेक्स्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एट्रीब्यूट गाइज। सो हम कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करेंगे जब हम HTML कोड लिखेंगे। सो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि while writing the attribute always use lower case due to the demand for other coding languages। तो इसके लिए अपर केस में भी चलेगा बट लोअर केस मेक सेंस। सो ऑलवेज कोड एट्रीब्यूट वैल्यूज। सो जो भी आपने वैल्यू, जैसे विड्थ का वैल्यू हम लिख रहे हैं 600 पिक्सल, या हम इमेज के SRC एट्रीब्यूट में लिख रहे हैं हम कोई image.jpg, तो उसके वैल्यू को हमें कोड करना ज़रूरी है, जो कि हम देख चुके एग्जाम्पल कोड करते समय। So these are the two important key points. Make sure you follow it. आज हमने पढ़ा कि क्या होता है HTML attributes.
So attributes were very important, and in the next video we will discuss about text formatting and comments. So till then, take care, be safe, practice daily, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.